Hi students, how are you? Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today in this lecture, we are going to solve some very important questions and little bit tough also. Differentiation on the range. Okay. So in the last lecture we had discussed and we had solved also various questions, very important questions from 5.3 or 5.4 exercise I think, differentiation from the range. And in that lecture, I told you about the reference questions. I told you that in the next lecture that I am going to solve some important some out of track questions which are not coming in the range, and just forcefully we have to just make them bound to lie in the range as well. Okay. Just whatever the term there are, just you should bring the range as well. अब इसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक हर एक फंक्शंस का रेंज तुम्हें पता होना चाहिए. जैसे साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2. कॉस फंक्शन का होता है 0 से लेके पाई. टेन फंक्शन का होता है ओपन इंटरवल -π/2 और π/2. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने हर एक चीज डिस्कस किया है. फिर कोसेक फंक्शन के लिए क्या होगा, कोसेक फंक्शन के देखिए साइन 0 अगर 0 होता है तो कोसेक 0 कितना होगा, इन्फिनिटी होगा. दैट मीन्स साइन का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2, कोसेक का भी सेम ही होगा, बट उसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होगा, 0 डिग्री, क्योंकि कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है. ठीक है. सो दैट मीन्स कोसेक का भी -π/2 से लेकर π/2 तक ही होगा, बट एक्सेप्ट 0 डिग्री. दैट यू शुड subtract this 0 degree from the whole interval. Okay. Now just like that, you should consider the different intervals for the different trigonometric functions. But in the NCERT questions, we had got the ready-made questions where all the questions and all the solutions used to be coming in the range. But here, whatever the questions are going to be solved in this lecture, that will not be in the range. Okay, just we have to bring it in the range first. Okay, and so that we will discuss a process, a structure by which you can bring them in the range as well. Okay, just write the first question. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन, just write the first question. Okay. Sine inverse twice x root 1 minus x square, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है. दैट मीन्स फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2 <x <1. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 है -1 <x -1/√2. So for getting the clear concept regarding this differentiation on the range, then you should view the lecture number 1 from the differentiation on the range. So those who have not viewed that lecture, this lecture number 1, I can suggest you to view the lecture number 1 first, and after that you should follow this lecture number 2. Without viewing the lecture number 1, I think you will not get the idea that how could you solve this type of questions. Okay, so तो शुरू करते हैं. y equals to sin inverse sin inverse twice x root 1 minus x square, right? Now I think for getting the structure, just see the structure here.
After seeing the structure, after getting the structure, I think one substitution is coming in my mind, and that is x equals to sine theta. And why should I take this x equals to sine theta? Now you can check, you can replace this sine theta here, and I think after substituting this sine theta here in place of x, you will get some formula structure, I think. Okay, sine theta and this root over 1 minus sine square theta, okay, here. So I think it will be cos theta. So y equals to sine inverse, that will be sine 2 theta, right? Okay, now you can't cancel this sine inverse and sine here because it is the range related question. Okay, so you should give the numbering here, equation number 1. Now just go to the question number 1. 1 by root 2 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है. अब इसको, इस रेंज को सॉल्व करना है, ठीक है. जैसे 1 बाई रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4, दैट मीन साइन 45 डिग्री का 1 बाई रूट 2 होता है. और x मतलब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, x मतलब यहाँ पर साइन थीटा, एंड 1 मतलब यहाँ पर क्या है, साइन पाई बाई 2, राइट. ठीक है. अब साइन से साइन कैंसल, दैट इज पाई बाई 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, बट वी नीड टू गेट 2 theta, not theta only. So I think we should multiply the whole inequalities by 2. Okay, तो 2 से multiply करना है, and then only we can get this 2 theta here, that is pi, and here you can see pi by 2. Is it in the range? According to the sine function, range, because this 2 theta is involved with the sine function, that's why you should consider the sine function range. So according to the concept, sine function range is minus pi by 2 से लेके whatever the angle it is, just no need to consider the angle, just you should consider that the angle should be lying between minus pi by 2 and pi by 2. But here you can see it is out of the range. This 2 theta, this angle is involved with the sine function, and this 2 theta range is actually exceeded the range of the sine function. Okay, just you can see pi by 2 से लेके pi, तो यहाँ पर तो हाईएस्ट pi by 2 तक है, तो pi by 2 क्रॉस करके बाहर चला गया, that means it is not in the range. अगर यहाँ पर रेंज नहीं आता, then you should follow some process, some steps, but these steps are not actually are not same for each and every question. Just you can follow this process, that means by using this process you can bring them in the range. Okay, अच्छा, अगर इस टाइप का कोई मतलब कंडीशंस आए कि रेंज में नहीं आ रहा है, सबसे पहले हर एक के साथ एक माइनस मल्टीप्लाई मारो. ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई रूल नहीं है कि माइनस मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस है, इससे हम लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, अब हर एक के साथ पाई प्लस करो, दैट मीन्स पाई माइनस पाई, उधर पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, और इधर पाई माइनस पाई बाई 2. ठीक है, तो इधर 0, इधर पाई माइनस 2 थीटा और इधर पाई बाई 2. अब देखो यहां पर क्या रेंज में आ रहा है, अब देखो यहां पर रेंज में आ रहा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक हुआ, 0 से लेकर कहां तक हुआ, पाई बाई 2 तक. ठीक है, अब रेंज तो ये आना चाहिए, अब एंगल के बारे में नहीं सोचना है. ठीक है, पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक आना चाहिए. ओके, बट हियर यू हैव दिस 0 से लेकर पाई बाई 2, आई थिंक इट इज इन द रेंज. 0 तो बीच में ही है, पाई बाई 2 में भी है. ठीक है, सो दैट मीन्स रेंज में तो आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर लेस इक्वल्स टू भी होगा. ठीक है, अब रेंज में आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है, ये जो एंगल है ना, क्या था, 2 थीटा था, ये चेंज हो गया, क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा. अब क्या करें, आई एम हेल्पलेस. ओके, अगर यहाँ पर एंगल चेंज हो गया फॉर ब्रिंगिंग देम इन द रेंज, देन व्हाट टू डू, you should follow the same process, you should follow the same angle. Now from equation number 1, go to the equation number 1. Y equals to sine inverse sine
2 थीटा था, देयर वाज 2 थीटा, बट यू शुड राइट हियर पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब व्हाट एवर द एंगल यू आर गेटिंग इन दिस पार्ट, दैट शुड बी रिप्लेस्ड हियर इन इक्वेशन नंबर 1 इन प्लेस ऑफ 2 थीटा, याद रखना, ठीक है। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा, अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर क्या रहेगा, पाई माइनस 2 थीटा। नाउ y इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा मीन्स आई थिंक साइन इनवर्स x। अब यहां से बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई का तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आंसर, ये होता है आंसर, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक ही चीज है, यहां तक सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 1 तक सेम ही है। अब यहां पर देखो -1 लेस देन एक्स लेस देन -1/√2, ठीक है। अब -1 मतलब क्या है, माइनस साइन, -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है, लेस देन एक्स लेस देन माइनस साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब एक्स की जगह तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, और यहां पर होगा माइनस पाई बाई 4, और यहां पर होगा अच्छा यहां पर साइन होगा, साइन माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है, और यहां पर भी साइन, ठीक है, यहां पर भी साइन पाई बाई 4। नाउ साइन 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 कैंसिल, देयर इज माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाई 4। तो यहां पर जो 2 थीटा चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई मारो, हर एक के साथ 2 अगर मैं एक मल्टीप्लाई मारूंगा तो यहां पर क्या होगा, देखो ऐसा कोई टर्म आया यहां पर, हाँ देखो तो ऐसा एक टर्म आएगा ना, है। अब यहां पर देखो, अब तो ऑलरेडी यहां पर माइनस दिया हुआ है, माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाई 2 आ गया, तो यहां पर तो ऑलरेडी माइनस साइन है, ठीक है। सो नो नीड टू इंट्रोड्यूस दिस माइनस साइन अगेन हियर। In this part we had multiplied the whole inequalities by minus, but here already you have this minus sign on both sides, then why should I multiply the whole equation by this minus sign? No need to multiply, okay. Directly that you can see, just you need to remember this structure के माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो है ना, ये पाई बाई 2 होना चाहिए। ये पाई बाई 2 कब होगा, जब इसके साथ पाई प्लस होगा, दैट मीन्स इससे पता चलता है कि हर एक इक्वेशन, दैट मीन्स वी नीड टू ऐड दिस पाई विथ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ओके, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये 0, ये पाई प्लस 2 थीटा, और ये क्या होगा, पाई बाई 2, ओके, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर रेंज में आ गया, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक रेंज में आ गया। अब बट एंगल भी यहां पर थोड़ा चेंज हो गया, एंगल भी यहां पर क्या देखो चेंज हो गया। नाउ फ्रॉम 1 जाओ, क्या है, y इक्वल्स टू क्या था, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है ना, 2 थीटा की जगह में क्या आएगा, पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये दोनों पार्ट में, ये जो दोनों एक्सप्रेशन मिला है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 एक्सप्रेशंस। यहां पर डिफरेंस ये है, इन दिस एक्सप्रेशन पाई माइनस 2 थीटा, दैट मीन्स इफ यू कंसिडर दिस x axis y axis, that means quadrant, pi minus, that means it is your pi minus 2 theta, that means second quadrant. In second quadrant sin positive होता है, that means sin theta and sin pi minus theta both are same, there is no change, there is no difference between these two expressions, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, साइन पाई माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव होगा, बट
इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में है देखो, पाई प्लस 2 थीटा आ रहा है। पाई प्लस 2 थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। दैट मीन्स इसको अगर मैं थोड़ा तोड़ूं, दैट इज साइन पाई प्लस 2 थीटा। अगर मैं उसको थोड़ा ठीक तरह से लिखूं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 थीटा, और यहां पर एक माइनस आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स देखो यहां पर एक माइनस साइन आ गया, बट इक्वेशन नंबर 1 में तो कोई भी माइनस साइन यहां पर नहीं था। कोई भी माइनस साइन यहां पर नहीं था। तो माइनस साइन नहीं था, दैट मीन्स व्हाट? वी शुड एक्सक्लूड दिस माइनस साइन फ्रॉम दिस पार्ट। दैट मीन्स देयर शुड नॉट हैव एनी माइनस साइन इन द फ्रंट ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर जो ये माइनस आएगा, उस माइनस को एब्जॉर्ब करने के लिए एक माइनस हम लोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां पर y इक्वल्स टू, अब यहां पर साइन और साइन इनवर्स कैंसल, दैट मीन्स पाई प्लस 2 थीटा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस 2 थीटा। दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल्स टू, ये माइनस पाई तो जीरो है, दैट मीन्स ये माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा के जगह साइन इनवर्स x। दैट मीन्स माइनस 2 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये है आंसर। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर मेन फंडा क्या है कि अगर रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ऐसे इस टाइप का ही प्रोसेस अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद श्योर है हम लोग, दिस एंगल विल बी चेंज्ड, व्हाट एवर द एंगल यू हैव इन इक्वेशन नंबर 1, वो एंगल चेंज होगा। अब चेंज होने के बाद क्या करें? वी शुड फॉलो दिस प्रोसेस, वी शुड रिप्लेस दिस एंगल व्हाट एवर वी विल गेट आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर गेटिंग द रेंज, वी विल हैव टू रिप्लेस इट, वी आर बाउंड। ठीक है, तो रिप्लेस तो करेंगे। करने के बाद देखेंगे ये जो एंगल हम लोगों को मिल रहा है, whether this angle is lying that means this angle is lying on which quadrant, we need to figure out these things। और उस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो भी तो देखना है। अगर पॉजिटिव होता है, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। इक्वेशन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जस्ट वी हैव रिप्लेस्ड पाई माइनस 2 थीटा एंड आफ्टर दैट साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर दिया मैंने, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में करते 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 देखा कि पाई प्लस 2 थीटा आ रहा है। अब पाई प्लस 2 थीटा मैंने दिखाया यहां पर, पाई प्लस 2 थीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट केस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन तो नेगेटिव होगा, साइड में देखो लिखा हुआ है साइन नेगेटिव, सो दैट मीन्स नेगेटिव तो नहीं आ सकता है। इक्वेशन नंबर 1 में तो नेगेटिव था क्या? साइन 2 थीटा था, माइनस साइन 2 थीटा तो नहीं था, तो दैट मीन्स ये माइनस साइन को यहां से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस दिस माइनस साइन फोर्सफुली, ओके, फॉर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, ओके, फॉर गेटिंग एक्सक्लूडेड दिस माइनस साइन फ्रॉम दिस लाइन। So that's why we have introduced this minus sign, and after that the same thing, okay, and that's why this calculations are very tricky, okay, so very important। आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत अटेंटिवली करना है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन जाएंगे, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, y equals to sin inverse, y equals to sin inverse 3x minus 4x क्यूब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है माइनस हाफ लेस देन x लेस देन हाफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये हाफ लेस देन x लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 3 -1 लेस देन x लेस देन माइनस हाफ। ये 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो
देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको देख के मुझे धुंधला धुंधला एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला है। सो आफ्टर सीइंग दिस फॉर्मूला, इट इज श्योर दैट इन प्लेस ऑफ x वी शुड रिप्लेस साइन थीटा फॉर गेटिंग द फॉर्मूला। ओके, तो साइन थीटा x के जगह रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x, दैट मीन्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, हो गया। अब इसको तो कैंसिल तो हम लोग नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये रेंज का क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। ठीक है, अब माइनस हाफ, दैट मीन्स माइनस साइन π/6 लेस देन साइन x के जगह मतलब यहाँ पर क्या पुट करना है, थीटा, और इधर साइन π/6। अब साइन 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 कैंसिल हो गया, -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6, बट वी नीड टू हैव 3 थीटा नॉट थीटा। तो 3 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 3 मल्टीप्लाई करने से -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। अरे भाई ये तो डायरेक्ट रेंज में आ गया, क्योंकि साइन फंक्शन का रेंज जो है ना वो क्या होता है, साइन फंक्शन का रेंज -π/2 से लेकर π/2 तो होता है। दैट मीन्स यहाँ पर तो डायरेक्ट रेंज आ गया। ये क्या साइन आ गया पता नहीं, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, अभी तक हाथ क्लियर नहीं हुआ मेरा। ठीक है, तो डायरेक्ट रेंज में आ गया। अब डायरेक्ट रेंज में आ गया तो नो नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट प्रोसीड द कैलकुलेशन। नाउ y इक्वल्स टू फ्रॉम 1, ये लिखना है तुम्हें फ्रॉम 1, डायरेक्ट जाओ फ्रॉम 1, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, राइट। तो y इक्वल्स टू 3 थीटा डायरेक्ट। तो y इक्वल्स टू 3 थीटा मीन्स क्या, साइन इनवर्स x, दैट मीन्स dy/dx इक्वल्स टू 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2, जितना सामने जाओगे उतना ही प्रॉब्लम शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जाओ, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाफ लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, इसमें हाफ मतलब क्या है, हाफ को हम लोग साइन π/6, x मतलब यहाँ पर क्या है, साइन x मतलब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, नो साइन थीटा, और 1 की जगह साइन π/2 लिख सकते हैं। अब साइन 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 कैंसिल, देयर इज π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब यहाँ पर तो मुझे 3 थीटा चाहिए है कि नहीं, तो 3 थीटा होने से देखो तो यहाँ पर π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/2 आ गया। देखो ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन रेंज मुझे तो -π/2 से लेके π/2 तक आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो π/2 को एक्सिट करके बाहर चला गया 3π/2। ठीक है, π/2 से तो बाहर चला गया 3π/2। अब इसमें जब बाहर चला गया, अब इसको तो मुझे लाना है अंदर। प्रोसेस क्या है, वही माइनस मल्टीप्लाई मारो सबके साथ, देखते हैं ये एक प्रोसेस है, इससे होता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर देखो
ये एक टर्म आ जाता है। अब पाई प्लस करते हैं सबके साथ, 3π/2 प्लस पाई, इधर पाई माइनस 3θ लेस देन पाई माइनस π/2। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक माइनस π/2 है, ये है पाई माइनस 3θ और यहाँ पर है π/2। अरे ये तो डायरेक्ट रेंज में आ गया, और पाई माइनस 3θ है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फ्रॉम वन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स क्या? साइन 3θ। अब 3θ की जगह में तुम्हें क्या लिखना है? पाई माइनस 3θ। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और साइन कैंसल, पाई माइनस 3θ, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, नो नीड टू इंट्रोड्यूस माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू पाई माइनस 3θ के जगह में क्या होगा? साइन इनवर्स x। सो दैट मीन्स dy/dx पाई, अच्छा पाई तो 0 होगा, दैट मीन्स माइनस 3 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है आंसर। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -1 लेस देन x लेस देन माइनस हाफ, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग प्रोसीड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? -1 के जगह में माइनस साइन π/2 लेस देन साइन थीटा और माइनस साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6, क्योंकि साइन 30 मतलब हाफ होता है, तो माइनस हाफ मतलब क्या होगा? माइनस साइन 30। साइन कैंसिल, दैट इज माइनस π/2 लेस देन थीटा लेस देन माइनस π/6। तो अब तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 3θ चाहिए ना। अब मल्टीप्लाई मारो, माइनस 3π/2, इधर 3θ और उधर माइनस π/2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी है, अभी यहाँ पर तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है टोटली यूजलेस। तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर पाई प्लस करेंगे, ठीक है, तीनों के साथ पाई प्लस करेंगे और ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का केस। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं। अब मुझे कैसे पता चला? हाउ वुड आई नो दैट प्लस should have been, sorry, this pi should have been introduced here, because here you can see in this right side part π/2 should be there, but we have minus π/2। अब माइनस π/2 से ले π/2 लाना है, क्या करेंगे? प्लस पाई करेंगे, प्लस पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस π/2 प्लस π/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर आएगा माइनस π/2 लेस देन पाई प्लस 3θ और यहाँ पर बन जाएगा π/2। लो आ गया रेंज में। सो फ्रॉम वन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3θ ना, तो साइन 3θ के जगह में वो देखो पाई प्लस 3θ तो में लिखना है। अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने बोला था, पाई प्लस समथिंग, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट का केस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? एक माइनस साइन सामने देना पड़ेगा, फिर उसके बाद साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ रहेगा पाई प्लस 3θ, सामने एक माइनस साइन भी रहेगा, ठीक है। सो दैट इज dy/dx इक्वल्स टू माइनस पाई का तो होगा नहीं, ये 3θ मतलब साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। Here it is your answer. Now you have got the proof. That not proof. Here it is your answer. So just like that, you need to solve this type of questions, okay? And just write some questions as your homework, okay? तुम्हें homework करना है, ठीक है? homework करना है. Just write homework. आरडी का 11.3 एक्सरसाइज, उसमें 11.3 एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 3 4, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 10 11, फिर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ये 8 क्वेश्चंस मुझे करके कल सुबह बिफोर 10 AM दिखाओगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये सब हेवी वेट क्वेश्चंस हैं, एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चंस के समान होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।